Shamim Rajani from our partners Women in Tech PK. I will hand over the virtual stage to Shamim Rajani now. Thank you, Sabah. Thank you so much. Welcome, everybody. Sabah, will I be able to see my panelists, or will you? Could you bring them here so that I can start the introduction and get started? Okay, perfect. So, yeah, wonderful. So happy to see my gang of people. We're missing Badr. I think Badr is also backstage. Sabah, could you please also add him? Wonderful. जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. कैसे हैं आप लोग? How is the day treating you so far? जी अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam. Walaikum assalam and assalamu alaikum to everyone else. So the day is super crazy. Abhi tak That's week has been crazy. Every single day, kuch na kuch hua hai. I think Global Entrepreneurship Week is like that. So right. That's right for us. So let me just get started so that we also try to end it on time, inshallah. So assalamu alaikum everyone. The panel that we have today is basically we've titled it as the insights into the Pakistan e-commerce ecosystem. The Pakistan e-commerce ecosystem, obviously, we all know, is growing more now than ever before, thanks to very vital key players from the public as well as the private sector. And in this panel, we will be discussing the opportunities and challenges of this ecosystem, as well as the skills and talents required by these businesses to grow. So as we all know that because this is a job fair, we have a lot of skill and talent on board who's actually listening right now. So please keep your eyes and ears open, because there's a lot of conversation around payment gateways, the need for the right kind of investment and mentorship that is going to be coming up, the need for localized solutions, and what is holding the industry back in reaching its full potential. As well as I would also like to add to the agenda the need to involve SMEs and women-owned businesses, including homegrown businesses, into the mainstream with the help of e-commerce. My name is Shamim Rajani, and I am the CEO of Genetic Solutions. I'm also the managing director there. I'm also the founder of CodeWorlds, and recently I am the vice chairperson at the Pakistan Software House Association, PASHA. With that, I would like to introduce my esteemed panelists in terms of alphabetical order. So we have with us Adil Shafi, the co-founder of Priceoy. Priceoy is a shopping intelligence engine turned e-commerce. Priceoy has enabled 20 million people to shop smart. Wow. He was recognized by Forbes 30 Under 30 and is well versed with the opportunities and challenges of the fast-changing e-commerce industry. Adil is also a member of the National E-Commerce Council, NECC. We'll learn more about what the NECC is later, because we have two very vital members from there. And he's an advocate of the customer-first online shopping experience. So welcome on board, Adil. We also have... Thank you, Shamim, and assalamu alaikum, everyone. We also have Anam Kamran. She is the founder of Bion. Anam is a serial tech entrepreneur. She's mostly known as the founder and CEO of Bion. It is an online shopping marketplace which is enabling micro, small, and medium-sized businesses in Pakistan to make their living sustainable through e-commerce. She was the first female entrepreneur selected for Alibaba eFounder Fellowship in 2018. And realizing her passion towards e-commerce and community development, she was recently appointed as an ambassador, as an Alibaba Asia ambassador. Wonderful. Welcome on board, Anam. So Anam, I also know you from SheViews. SheViews was also something sort of like your one of your initiatives for women empowerment or bringing women into the main e-commerce stream, right? Thank you, Shamim. It's She-Lance, She-Lance, yeah. So She-Lance, yeah, but it is not very much in working condition. The idea behind this was to bring STEM women specifically into the mainstream by connecting them with the industry. Yeah, so I just wanted to add that to your introduction because it links very well to our panel today.
Then we have Badr Khushnood. Badr is a co-founder of Fishery, which is a B2C e-commerce platform. Badr previously co-founded Brahmers. That's right. Am I pronouncing it correctly, Badr? Brahmers. Brahmers. Yeah, Brahmers, which is a leading full-service digital media and marketing company. For over a decade, Badr consulted for Google, Facebook, and Twitter as their first person on the ground in Pakistan. As an active member at Pakistan Software House Association, Pasha, Badr is leading the private sector narrative at the National E-Commerce Council. Badr has also been the chairman at Pasha in one of his last terms. So welcome on. Vice chairman. And the vice chairman. अभी जी बिल्कुल. तो अभी आपकी सीट हमने ली हुई है, तो नेक्स्ट है इंशाल्लाह. नहीं बिल्कुल मैं तो बड़ी मुश्किल से ये सीट लेने वाला काम वैसे भी जरा हेवी वेट होता है. अगले साल आपको वापस है जी, बड़ी मेहनत लगती है. So yeah, thank you, Badr, for your time. We have Nadia Patel, founder of Fempro. Nadia is the founder of SheOps and Fempro initiatives. So these are initiatives to empower women economically, providing them with knowledge, skills, support, and platforms to succeed. She's a senior lead trainer for Facebook's She Means Business and digital literacy programs in Pakistan, an alumna for FB Star 2.0 and fellow, Facebook Community Leadership Program. Nadia works with women-owned micro, small, and medium businesses, helping them to scale with a special focus on using technology and online platforms. Welcome, Nadia. I am so happy to see you. Thank you so much for having me on the panel. You're most welcome. So as the introduction went, I wanted to make sure that when we finish this panel, we have a couple of things that we have understood and delivered to our audience. Now our audience is mostly youth. So we are going to make sure that we keep it to a level where our youth understands what we are saying. So हम English भी इस्तेमाल करेंगे, उर्दू भी इस्तेमाल करेंगे. बहुत बड़ी पाकिस्तानी youth है हमारे पास यहाँ पे. और मैं वापस reiterate थोड़ा सा ये कर दूंगी कि हमारा जो एजेंडा है आज, वो ये है कि हम ये समझें कि हमें क्या ज़रूरत है localized solutions की, what is holding the industry back, ठीक है, in terms of whether it's payment gateways or it's the absence of the right investment or the right mentorship, and how can we involve small and medium businesses and women-owned businesses, so youth-based businesses and women-owned businesses into the mainstream. So ये हमारा एजेंडा है. अगर हम इस एक घंटे में इसको लेके खड़े हो सके तो I think that'd be wonderful. With that, my first question would go to Anam. Because आप जो है वो एक e-commerce business चलाती हैं, so what are the most important trends that businesses should take into account for their digital e-commerce operation, especially in this time of global pandemic? आपको पता है कि I think e-commerce is one of the biggest industries that has seen a boom. If people weren't on e-commerce, they actually jumped on e-commerce during this pandemic. So if you could shed some light on that. Yeah, sure. So in fact, if I talk about my platform only, Beyond.pk, we have seen 6x growth in the COVID situation in pandemic. So you can imagine the overall effect on the industry. So yes, there are a lot of people who are first-time online shoppers, and they opt for online shopping just because of the pandemic. Even in my family, my parents have never ordered anything online, but they have moved towards the online, especially for medicine buying or for fresh vegetables buying. So this is a trend we have seen from last few months when the COVID situation started. And to continue the trend in near future, we have to focus on the customer experience most importantly, because there are a lot of people who are coming first time on e-commerce, and if we mess up with their experience, they will never come back, no matter what, because now the situation is quite normal. There are no such lockdowns, 100% lockdown ho, and people can't go out to buy something. So they have options for conventional buying and online buying, but we can make them stick to the online buying or e-commerce by providing them best customer experience. And to provide them best customer experience, there are a lot of things, from logistics to payments to product quality and trust and everything. So in सारी चीजों को combine करके, when we talk about the real customer experience, this is something which
every e-commerce or online business, be it on Facebook, be it on any marketplace or an e-store. I think customer experience something which we all should look for to keep with the trend which is growing, obviously. Perfect. Yeah, right. Wonderful. So, Adil, if I come to you, and Anam basically spoke about a couple of areas that every online business should be keeping in mind when they are growing or when they're actually starting off. If I come to you, तो आप मुझे ये बताएं कि आपका स्टोर जो है वो ज़्यादा फोकस्ड है मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ. तो how do you think that your market is a little niche, and what are some of the specific challenges, your areas of improvement, or your areas that somebody starting a mobile business or an electronic business should be looking after when they do that? इसमें जो हमने बहुत बड़ा शिफ्ट देखा है फ्रॉम प्री पेंडेमिक और आजकल में, वो ये आया है कि पहले जो मार्केट थी वो थी प्राइस कॉन्शियस मार्केट जो ऑनलाइन लेती थी. तो सिंगल बिगेस्ट रीजन टू बाय ऑनलाइन प्रीवियसली वाज द प्राइस फैक्टर कि जहाँ ये चीज़ हमें सस्ती मिलेगी तो हम ऑनलाइन लेंगे. बट बिकॉज ऑफ कोविड एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है कि वो फोकस जो है वो वैल्यू जो जिस चीज़ को कस्टमर करता था वो चेंज हो गई टू कन्वीनियंस. तो अब जो है वो कस्टमर सेम प्राइस भी देने को तैयार है, इन सम केसेस वो प्रीमियम देने को भी तैयार है फॉर द सर्विस दैट ई कॉमर्स इज डिलीवरिंग, कि जो उसको घर पे चीज़ मिल जाती है, उसकी सिलेक्शन रेंज बहुत ज़्यादा है. इसी चीज़ को हम लोग लेवरेज कर रहे हैं प्राइस वे में भी, कि नीश ई कॉमर्स में एक जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है स्पेशली, इसमें जो एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है प्राइस पॉइंट हमारे बहुत हाई होते हैं. सो ऑन एवरेज एन ऑर्डर साइज इज 30,000 रुपीज़. So which is very different from a fashion e-commerce store जहाँ पर जो है वो average order size जो है वो it's between 1,500 to 2,000 rupees. तो अगर कोई बंदा 30,000 rupees का एक ऑर्डर से आपको ट्रस्ट कर रहा है तो you need to have a very sharp focus on customer experience, and that customer experience starts from the fact कि जिस टाइम को आपकी वेबसाइट पे लैंड होगा और जब तक उसको हाथ में प्रोडक्ट मिल नहीं जाता, एंड इट डजंट स्टॉप्स देयर, इट गोज आफ्टर. उसके बाद भी क्योंकि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में वारंटीज़ के बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि अगर आपने प्रोडक्ट लिया है और उसकी कुछ मसला आ गया उसके साथ 1 साल के अंदर, तो भी आपने उसको एक्सपीरियंस के अंदर वो चीज़ आती है कि आप उस चीज़ को कैसे केटर कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा माइल कैसे जा रहे हैं कस्टमर के लिए वो चीज़ करने के लिए. तो इसलिए जो अब हमने भी सारा जो अपना फोकस रखा हुआ है वो इट्स प्राइमरीली ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस, कि कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो. एंड प्राइस तो एक फैक्टर होता ही है ऑनलाइन के लिए, बट इट्स प्राइमरीली ये है कि 30,000 का किसी ने फ़ोन लेना है तो उसके लिए ट्रस्ट बिल्ड करना है, और ट्रस्ट सबसे अच्छा जो ट्रस्ट आता है वो दैट इज थ्रू वर्ड ऑफ माउथ. कि अगर किसी ने आपसे लिया हुआ है तो वो आपको फेसबुक पे अगर रिव्यूज़ दे रहा है या डिफरेंट प्लेटफॉर्म से रिव्यूज़ दे रहा है या वैसी कस्टमर्स अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बता रहे हैं, दैट्स द बेस्ट सोर्स ऑफ मार्केटिंग दैट वी आर लेवरेजिंग. Right. So it's basically word of mouth, and you're making sure that the customer experience matters. And I think that's the bottom line for any business, right? At the end of the day, it's the bottom line for any business, be it a service business or be it a product delivery business. So I'll come to Badr, because we're just trying to, make sure that we sync and point by point. कुछ चीजें जो है वो, and I'm going to go into more deep dive into more things like return policy, और अभी हमने frauds की बात की and warranties की, and Badr, I think you have a lot of and Nadia and everybody will have a lot to say on that. But अभी जो है अगर Badr मुझे आपसे पूछना हो कि what are the key challenges for building a localized solution for local e-commerce ecosystem, and do you think that these issues like payment gateways, payments जो अभी हम कैश ऑन डिलीवरी कर रहे होते हैं, या जो रिटर्न पॉलिसीज हैं जो अभी अदिल ने बात की कस्टमर एक्सपीरियंस की, would you like to shed some light on that? और ये कि हम इस वक्त भी why are we not able to compete with the world when we talk about e-commerce, and what is pulling us back in that? And I don't want you to touch about government policies. सारे सवालात पूछ लिए हैं. वो वाला पलंदा नहीं खोलना अभी, वो वाला 1 घंटा मुझे सिर्फ चाहिए अकेले को. नहीं, मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि वो वाला जो है वो नहीं खोलिएगा कि गवर्नमेंट के एंड पे क्या हो रहा है, बट ये कि फ्रॉम अ यूजर पर्सपेक्टिव कि क्या ऐसी चीजें हैं जो यूजर, जब अदिल बात कर रहे हैं कि जी कस्टमर एक्सपीरियंस हम बेटर कर रहे हैं, तो क्या ऐसी चीजें हैं कस्टमर एक्सपीरियंस में जो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ई कॉमर्स का तो उसको ध्यान रखने की जरूरत है फ्रॉम अ कंट्री लाइक पाकिस्तान पे बहुत सी पुल बैक्स हैं.
असल में फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शमीम एंड आल्सो फायजा फॉर कोऑर्डिनेटिंग दिस एंड आई नो क्या हमें आपको पकड़ के बिठाना पड़ रहा है। आई एम नॉट श्योर बाकी कितने रिस्पॉन्सिव थे, बट आई अपोलोजाइज कि अगर मैं बहुत रिस्पॉन्सिव नहीं था, बट आई अप्रिशिएट कि आप लोग कोऑर्डिनेट करें। सो जो मेरी अभी तक लर्निंग रही है, एंड आई एम श्योर एवरीवन वुड हैव अ डिफरेंट प्रॉब्ली पर्सपेक्टिव ऑन इट। अब हमें ना ये भी देखना है कि मार्केट की मैच्योरिटी क्या है। So you can't really just go and say कि हमारी global yardstick क्या है. So just to put things in context, 2020 pre-COVID was expected to be about $4 trillion of e-commerce. B2C की मैं बात कर रहा हूँ, business to consumer, B2B को नहीं टच कर रहा हूँ। और उस globally उसमें से एक एवरेज जो है वो ये है कि 15% of the retail is online. So 15% का मतलब ये है कि आपकी 15% जो है वो चीजें जो दुकानों में बिकती हैं उनका 15% ऑनलाइन बिकना चाहिए। ग्लोबल एवरेज ये है। ये एवरेज काफी स्क्यूड है डिफरेंट ममालिक में अपनी अपनी जगहों पे। यानी कि अगर आप देखें चाइना को प्री कोविड तो 25% पे पहले ही था, अमेरिका तकरीबन 10% पे था। तो अगर आप देखें ईस्ट वाज लीडिंग इट एंड नॉट द वेस्ट। सो चाइना वाज लीडिंग दिस ई कॉमर्स प्ले B2C में। मगर कोविड ने ये सारी चीजें चेंज कर दी, जिसमें अभी अदील ने भी और अनम ने भी बात की, और एकदम ये चीजें चेंज हुई। और पाकिस्तान बाय द वे इसमें 1% से भी कम पे है। यानी हमारी रिटेल का सिर्फ 1% अभी ऑनलाइन गया, 99%, 99% ने अभी भी ऑनलाइन जाना है। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है कि हम कौन कितना ऑनलाइन जा सकता है। मगर एक जो चैलेंज आता है बहुत सारा वो ये है कि हमारे बिजनेस, दो इश्यूज हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं। एक, हमारे बिजनेसेस वेरी ऑनेस्टली माइंडसेट चेंज नहीं लाना चाहते, चेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। तो छोटे बिजनेसेस को, छोटे और दरमियाने बिजनेसेस को अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है कि कैसे उनको अपने आप को इम्प्रूव या चेंज करने की जरूरत है कि दुनिया में कंज्यूमर फर्स्ट, जिस तरह अदील ने कहा, कंज्यूमर फर्स्ट होने की जरूरत है। अब आप पहले प्रोडक्शन ओरिएंटेड होते थे, अब आप कंज्यूमर ओरिएंटेड होने की जरूरत है कि वो क्या चाह रहे हैं। पहले पुश था, अब पुल हो गया। अब जो कस्टमर चाह रहा है आपको उसके हिसाब से करना है। अगर कस्टमर चाहता है मुझे होम डिलीवरी हो, कस्टमर चाहता है कि मुझे COD ऑनलाइन पेमेंट से जो भी फैसिलिटी मिले, तो वो उसके हिसाब से आपको अपने आप को एडजस्ट करना है। अभी तक हम माइंडसेट पुराने पे चल रहे हैं पाकिस्तान में मेजॉरिटी, कि हम ओल्ड स्कूल चल रहे हैं। अब उससे अगर आप निकलें तो चैलेंजेस एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप बेसिक वैलिडेशन ये करना चाहें कि मेरा बिजनेस ऑनलाइन बेच सकता है, उसके लिए बहुत फैंसी कुछ होने की जरूरत नहीं है। आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाने की जरूरत है। हाँ, वो टेक्नोलॉजी एक बैरियर है, मैं उस पर भी आता हूँ। उसके अलावा जो ऑनलाइन पेमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और वो सब मसाइल हैं, मगर वो फिर भी ब्रिक एंड मॉर्टर से बेहतर ही है अगर आप उसको कंपेयर करें। सो पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक, स्टेट बैंक के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 2018 में, 17-18 के साल में पाकिस्तान में $700 मिलियन का ई कॉमर्स हुआ। B2C ई कॉमर्स में बात कर, $700 मिलियन, which was approximately 96 billion rupees. अब अगर आप एस्टिमेट करें इस 19-20 का, तो तकरीबन $1 बिलियन हम क्रॉस कर चुके हैं। अगर ये थर्ड पार्टी एस्टिमेट्स अगर आप देखें, तकरीबन $1 बिलियन हम क्रॉस कर। तो इंडस्ट्री रीजनेबली बड़ी है, इसीलिए हुकूमत ने पॉलिसी भी बनाई है और अपॉर्चुनिटी भी है। मगर हमारे बिजनेसेस को अब हुकूमत इस तरह पॉलिसी से इंटरवेंशन के अलावा ज्यादा काम नहीं करेगी। अब हमारे बिजनेसेस को आगे आने की जरूरत है, उनको लीड लेने की जरूरत है, उनको अपने आप को टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की जरूरत है। और टेक्नोलॉजी एक बैरियर है, मगर टेक्नोलॉजी के अलावा जो बाकी 7-8 चीजें उनको जहन में रखने की जरूरत है, वो लॉजिस्टिक, पेमेंट्स, कस्टमर सर्विस, इन्वेंट्री, ये 4-5 ऐसी जरूरी चीजें हैं जो आपको इसके साथ साथ देखने की जरूरत है। जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, एक तरीका ये है कि कुछ आप पहली एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। बहुत सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स अवेलेबल हैं, ओपन सोर्स में, फ्री हैं, जिनको आप कस्टमाइज करके अपना ऑनलाइन स्टोर सेटअप कर सकते हैं। एक वो तरीका है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर तरीका। दूसरा सोशल कॉमर्स है, जिसमें लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहे हैं, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। तीसरा OMP है, विच इज ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, कि मैं प्राइस ऑयल पे अपनी एक शॉप खोल लूँ, बाय ऑन पे एक शॉप खोल लूँ, वगैरह वगैरह, ये भी मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। सो जनरली जो रिकमेंडेड अपॉर्चुनिटी वो ये है कि आप हाइब्रिड हो, आप मार्केट प्लेसेस पर भी बेच रहे हो, मगर आपका डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल भी अपना हो। उसकी वजह ये है कि मार्केट प्लेसेस पे मेजरली आपका ब्रांड इक्विटी नहीं बिल्ड होती, मगर बॉक्स मूविंग हो जाती है। इसको मैं जनरली B&B कहता हूँ। यानी आपकी बॉक्स मूविंग होगी मगर ब्रांड बिल्ड नहीं होगा। मगर अपने स्टोर के ऊपर आपका ब्रांड बिल्ड होगा, मगर उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता बॉक्स मूव करने के लिए, ज्यादा वॉल्यूम लाने के लिए आपको बिजनेस अपने स्टोर के ऊपर ट्रैफिक लाने की जरूरत है, उसको इन्वेस्ट करने की जरूरत है उसके अंदर। सो दैट इज समथिंग विच इज अवेलेबल।
और हमने ये नोटिस किया मार्केट में कि लोगों में ये चैलेंज है कि छोटे एसएमईज के पास अपना आईटी डिपार्टमेंट नहीं होता, आईटी की टीम नहीं होती, तो उनको ये उनके लिए इन टूल्स को इकट्ठे ऑप्टिमाइज करके खुद चलाना आसान नहीं है। तो इसलिए हमने फिशरी से ये काम किया कि हम लोगों को ये सेल्फ सर्विस मॉड्यूल दे दें कि आप टेक्नोलॉजी की सरदर्द को भूल जाएं और आप अपना खुद स्टोर सेटअप कर सकें। तो एंड आई थिंक दैट्स एन अपॉर्चुनिटी बहुत सारे एसएमईज के लिए कि उनको ऐसे टूल्स पहले यूज करने चाहिए। हर किसी को एडवांस टूल पे नहीं जाना चाहिए, ये भी एक सोच रखने की जरूरत है। लोग अगर 100 रुपए हैं तो उनको 20 रुपए से ज्यादा उसमें से टेक्नोलॉजी पे स्पेंड नहीं करने चाहिए, 80 रुपए मार्केटिंग पर जाने चाहिए। जो दिखेगा वो बिकेगा। डिजिटल में भी आपको अपनी चीजों को विजिबिलिटी लाने की जरूरत है, उसमें एड्स लगाने की जरूरत है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत है, बेशुमार और तरीके हैं जो आप करते हैं, बट ये सब चीजें आपको ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव लेने की जरूरत है कि हमारे एसएमईज को माइंडसेट पहले चेंज करना, बाकी सब चीजें आई थिंक अदर पीसेस ऑफ द पजल आर ऑलरेडी टू एन एक्सटेंट सॉल्व। मगर ये नहीं है मैं कह रहा कि परफेक्ट हैं, चैलेंजेस हैं, तो उस पर हम आगे बात करेंगे, बट परफेक्ट नहीं है मगर हैं। Right. So we already have a lot of questions around that, but before we go to those questions, especially questions around the technology stack कि कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, and we can talk about that because again we need to realize कि जो हमारा audience है वो youth है और इस तरह के सवाल हमारे पास definitely आएंगे and they're more interested to learn in that area. So before I go to that, I want to go to Nadia. Nadia, you've been running, community and a number of communities. Now you're very actively running FemPro, mashallah. So, and you work with a lot of women who have, homegrown businesses. So, how helpful do you think it is when it comes to running a successful e-commerce business? Do you think that these women should go? And if they should, what is the path that they see and the hurdles that they see in that? So based on the two communities I've run and the e-commerce marketplace also in the 5 years of experience, what I can see clearly, the first thing is that COVID has made a drastic difference in the mindset of the women who were just limited to running their products, or they were just limited to social commerce like a Facebook page, Instagram, WhatsApp, or just posting on groups. We saw like a huge number of women going towards their own e-commerce stores, listing on Shopify. We've sent some Fisheries way as well. So there was this big change jo mindset mein aaya because of COVID. They just felt they needed to have a presence. Then again, there is still a huge segment of women they took that first step towards social commerce or being more active in social commerce in communities jo zyada exhibition se bechte the. There were women who had these niche products like niche jewelry items, fashion designers. They were more inclined on exhibitions or retail or multi-brand stores, because their basic concern about going towards e-commerce or social commerce was the fact that designs would get copied, and we do not have policies to protect that as yet. So that's like a major issue, especially when it comes to niche designing. So standardized products wale ya resellers to kar rahe the, but these were the ones who during COVID moved towards that. And personally, I have always advocated for e-commerce, and as Badr said, I completely agree with that. They need to have a two-pronged strategy where they are listing on marketplaces, and yet they need to have some element of their own presence as well. Even if it's Facebook shop, that's fine, but their own brand needs to exist. And given today's situation, they should. Again, I'm of the personal opinion is कि जब if it's technology or initial investment to theek hai when it comes to making a WordPress website, or those who have bigger setups going towards Magento or going towards their own e-commerce separate web store. But it's very difficult to then market it, get sales on that. So I always recommend women that as a first step, go towards an existing platform like Shopify or Fishery or any one of these platforms, rather than setting up the whole tech system yourself, having the team, because it gets difficult. Have your social commerce, list in a marketplace, and then have your website through one of these platforms. So that's a strategy we always suggest. Again, in that, I would recommend e-commerce ki taraf only those women-owned businesses or even small businesses should go that have enough inventory, or they can cater to the orders, because at times they create these e-commerce stores but they don't have enough inventories, or let's say it's a handmade craft item that's taking them 2 weeks to make.
So when you're going towards e-commerce, you should be able to cater to those orders and the numbers, or if you are selling some standardization in your products, I mean, that's when you should take that step. If you are below that and you're erratic and sometimes you're selling, sometimes you're not selling, तो वो अगर आप उस non-serious level पे, then maybe social commerce and Facebook communities are where you should stick. Right, wonderful. And I think you answered one of our questions, which was what do e-commerce businesses prefer, ready-made solutions like Shopify versus a custom solution? You answered that beautifully. However, I would like to open that to our other panelists as well. What do you think, Adil, Anam, that क्या होना चाहिए? Custom solution build करना चाहिए, or to go with a platform like Shopify या कोई localized platform like Fishery, या जो है जैसे भी नादिया ने कहा कि किसी marketplace पे चला जाना चाहिए? What should be the starting point for anyone who wants to start in an e-commerce business with a limited investment? Yeah, so I would definitely agree with Badr and Nadia. When going towards building your own marketplace or e-store from the scratch is very much, time consuming, resource consuming, और बहुत सारी चीजें बाद में जाके आपको mess up create कर सकती हैं. So it's always a good idea to start with your own brand Facebook page, Instagram specifically, because these two social platforms are very much, on high numbers when it comes to e-commerce or online selling. In fact, Instagram, Facebook से ज़्यादा इस वक्त अच्छा जा रहा है for online shopping. And to increase your number of orders to generate more sales, फिर आप marketplaces की तरफ move होते हैं. जो existing marketplace हैं, you can always go to them, because वहाँ पर fortunately you don't have to invest something to list your products. You just have to pay certain amount of commission when you make a sale. So again, it's a win-win for you, क्योंकि आपको वहाँ पर पहले से कोई प्री इन्वेस्टमेंट नहीं करनी other than your own inventory, जो कि आपने सेटअप करनी है obviously. And once you think कि आप अपने social e-commerce को भी properly tap कर लिया है, आप marketplace पे भी अच्छा generate कर रहे हैं, then you can think of creating your e-store or website by using Fishery or Shopify or WordPress, WooCommerce. But again, it is for e-stores only. If you are thinking to go for a marketplace, to create a marketplace, then you have to think on certain parameters as well, because उसके लिए फिर आपके पास पीछे से बहुत सारी investment होनी चाहिए. It's not कि आपको रात को ख्वाब आया और सुबह दराज जैसा marketplace बना के बैठ जाए. So this is not going to happen. ये वैसे काफी लोगों को ख्वाब आता है. This is my two cents. बट ये बहुत सारे लोगों को ख्वाब आता है. अदील भी इसीलिए हंसते हैं. वो ये बहुत सारों को ख्वाब आता है कि मैं कल दराज से या फूड पांडा से बड़ा बन जाऊं और एकदम बस खत्म बातें. तो आपने सही अच्छा इंटरप्रेट किया. So being a bootstrapped marketplace myself, I know कि क्या pains हैं, क्या challenges हैं. तो इसलिए मैं तो कभी भी किसी को recommend नहीं करती to go for a marketplace until unless you have, कोई sound technology background हो आपका, आपकी technology company हो, आपके पास heavy investments हो. क्योंकि marketplace is a different ball game. हाँ, अगर आप ई स्टोर या नीश स्टोर या अपना ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड करना चाह रहे हैं, दैट्स अनदर थिंग, जो कि आप बहुत इजीली कर सकते हैं और करना भी चाहिए. जिसमें एक मेजर एग्जांपल बैग गैलरी की है. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. बैग गैलरी, जिन्होंने अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट भी रेज की है, दे आर नीश स्टोर्स जिन्होंने फैशन प्रोडक्ट्स पे काम किया थ्रू आउट, और वी ऑल कैन सी देयर सक्सेस. So yeah, I think niche store is very much appropriate if you have limited resources, or niche store के लिए भी first step is social e-commerce marketplace and then your own website. Give me a second. Yeah, sure. Wonderful. I think that is beautifully tapped. मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था, if I may. जी. सॉरी, आई थिंक दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड के टेक स्टैक क्या होना चाहिए. मैं देख रहा हूँ सवाल जिस तरह आ रहे हैं टेक वाले, और वो आई थिंक हम एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि ई कॉमर्स में टेक्नोलॉजी एक फैसिलिटेटर है. इट इज नॉट द एंड, इट्स द मीन्स टू एन एंड. खाली टेक्नोलॉजी खड़ी करने से ई कॉमर्स नहीं होगा. आपको वैल्यू चेन ऑफ ई कॉमर्स समझने की जरूरत है. आपको लॉजिस्टिक्स, पेमेंट्स, इन्वेंट्री, कस्टमर सर्विस, ये सब चीजें समझने की जरूरत है और उन पे ध्यान देने की जरूरत है. खाली टेक्नोलॉजी कुछ नहीं करेगी ई कॉमर्स में. एक बात. दूसरी बात, जो लोग ई कॉमर्स शुरू करना चाहते हैं,
इससे पहले कि वो ये सोचें कि टेक स्टैक क्या होगा, उनके दिमाग में तीन चार चीजें और फर्क होनी चाहिए। नंबर 1, उनको ये देखना चाहिए कि मैं किस कैटेगरी में प्ले कर रहा हूँ, मेरी नीश क्या है, आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। फिर जिस अनम ने बताया कि ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि मैंने DTC यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर करना है या ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनानी है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस एक या दो लोगों का काम नहीं है, इट्स अ लार्जर एफर्ट एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप वेंडर्स कैसे सिलेक्ट करेंगे, उनकी इन्वेंट्रीज कैसे आएंगी, सिंक कैसे होंगी, डिलीवरीज कैसे होंगी, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। तो अगर आपने डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल भी देख लें इन दोनों केसेस में, इसके बाद आपको 2-3 की मैट्रिक्स देखने की जरूरत है, फोरकास्ट करने की जरूरत है, प्लान करने की जरूरत है। नंबर 1 CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। मेरी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होगी, मेरी इंडस्ट्री की करंट एवरेज क्या जा रही है, मैं क्या प्लान कर रहा हूं या कर रही हूँ। दूसरा आपको देखने की जरूरत है ROAS, मेरा रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या प्लान है, मेरी एवरेज मार्केट की क्या है, मेरे रीजन की क्या है, कि मैं कितने पैसे लगाऊंगा एडवर्टाइजिंग में तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। देयर आर एक्सेप्शंस, जिस तरह प्राइस हो इज प्रॉब्ली एन एक्सेप्शन, जिन्होंने SEO पे बहुत खेला है। SEO आसान नहीं है, SEO टेक्स अ लॉन्ग टाइम। सो आपको सबसे पहले अगर इंस्टेंट रिजल्ट्स या क्विक विंस चाहिए तो आपको पेड एडवर्टाइजिंग करनी होगी, तो आपको रिटर्न ऑन एड स्पेंड देखने की जरूरत है। और फिर आपको तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट देखनी है कि मेरा GMV क्या होगा, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, मैं हर मंथ कितनी टोटल सेल्स कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, और उसके हिसाब से मैं उसको एस्टिमेट करूं, फोरकास्ट करूं। इन तीनों चीजों को देखने के बाद आपने देखना है कि मैं अब अपने बजट में से कितनी टेक्नोलॉजी में पैसे लगाना चाहता हूं। उस बजट की बेसिस पे मैं देखूं कि मैंने पहली बात इन हाउस टीम रखनी है या आउटसोर्स करना है। इन हाउस टीम रखनी है तो मैंने कौन सी टेक स्टैक, और जो भी आप टेक स्टैक रखेंगे वो कल को आपको अपग्रेड चेंज करना पड़ेगा। यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल थिंग्स। आप पहली दफा ही एकदम 4x4 नहीं ले लेते जो कि ऑल टाइम 4 व्हीलर हो, आप 2 व्हीलर से शुरू करते हैं एंड देन यू कीप ऑन इंप्रूविंग एंड ग्रोइंग, एंड जिस तरह हम सब आम जिंदगी में भी करते हैं। हम एकदम बड़ी विश तो नहीं हमारी पूरी हुई, तो हम छोटी छोटी विशेस को वी जस्ट कीप ऑन, एंड दैट्स MVP मॉडल कि आपको मिनिमम वायबल प्रोडक्ट पहले चाहिए ताकि आप वैलिडेट कर सके अपना मॉडल। तो फास्टेस्ट उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने की जरूरत है वो है टाइम टू मार्केट, कि मैं वो टेक स्टैक लूं जिसमें जल्द अज जल्द मैं अपने कस्टमर तक पहुंच सकूं इससे पहले कि मेरा कंपेटिटर आ जाए। डिजिटल में टाइम टू मार्केट इज क्रिटिकल, बिकॉज अगर आपके पास बहुत कोई एक्सेप्शनली R&D बेस्ड यूनिक आइडिया नहीं है तो इसका मतलब आपका कंपेटिटर भी जल्दी जा सकता है लाइव। सो इट्स द फर्स्ट मूवर्स बेनिफिट जो आपको लेना है। तो जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स जो कि नॉन टेक से पहले आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और फिर आप टेक वाली साइड पर आए। Right, wonderful. I think that's a very good summary of the whole thing. Moving on to a couple of things. एक तो सवाल जो हमारे पास अभी आया हुआ है, and I want to take it to Adil, especially because he runs a huge e-commerce business. Okay, what are the types of tech e-commerce businesses, tech talent that the e-commerce business is looking to hire? So आप लोग किस तरह की talent को hire करना चाहते हैं that you can tell our audience about? And then I would really want to move towards branding because that's a very important pressing item. अच्छा, इसमें जो हमारा क्राइटेरिया हायरिंग के लिए वो बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रियलाइज़ कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कोई बहुत ही ऐसा काम नहीं है कि उसमें कोई रॉकेट साइंस है। हम लोग टेस्ला नहीं है कि जो कोई गाड़ी बना रहे हैं, या हम लोग जो है वो स्पेस एक्स की तरह कोई रॉकेट नहीं बना रहे। ये ई-कॉमर्स एक बहुत ही घिसी-पिटी सी चीज़ है जो दुनिया में बहुत से हज़ारों लोगों ने बहुत सक्सेसफुली किया हुआ है। तो ऑल वी नीड इज़ टू हैव लोकलाइजेशन और उसकी अच्छी एग्जीक्यूशन। आइडियाज़ सारे जो हैं वो बहुत सारे इंटरनेट पे भी पड़े हुए हैं, बहुत सारी किताबों में भी लिखे हुए हैं, और आप खुद करेंगे तो आपको भी आ जाएँगे। तो इसी प्रिंसिपल को आगे लेते हुए चलते हुए हमने अपनी जो हायरिंग पॉलिसी डिज़ाइन की है, तो उसमें हमारे लिए जो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है हमें बंदा वो चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हो। हम लोग ये नहीं देखते कि उसके पास IT की डिग्री है, उसके पास फैशन की डिग्री है, या उसके को फ़ोन के बारे में भी कुछ पता है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम उसको सिखा सकते हैं, और इसको सिखाने में 1-2 महीने 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगते। लेकिन जो चीज़ हम किसी को नहीं सिखा सकते वो है उसका एटीट्यूड कैसा है काम के बारे में, और वो काम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर करता है। But across the board, it's the same thing. I mean, whatever you pick up, it's the same thing at the end of the day. From L&D to e-commerce, everywhere. सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन आप दे सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं बेशुमार हैं। जो दिल ने बात की एटीट्यूड, ऑनेस्टी वगैरह वो बहुत इंपॉर्टेंट। Absolutely. Adil, please go on. I just wanted to sort of like, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा पॉइंट है जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो ये everyone
तो उसलिए बेसिकली यही हमारा क्राइटेरिया है, इसलिए हम लोग कोशिश भी ये करते हैं कि जो बंदा रखें वो आइडियली या तो हम उसको एज ए इंटर्न से स्टार्ट करें ताकि हम उसकी ये चीज़ें देख सकें और उसको हम लोग उस 2-3 महीने में उसको ट्रेन कर सकें, या फिर हम वो बंदा रखें जो कि किसी रेफरेंस के थ्रू आ रहा हो, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आ रहा हो, ताकि आपको पता हो कि वो बंदा किस तरह का है। सो स्किल से ज़्यादा हम लोग इन चीज़ों Would को it फोकस be करते हैं fair to पर्सनली say, एट would it be प्राइस पे। safe to say that at the end of the day degree does not matter? और अगर उनको वो ट्रैक आता है किसी हद तक, so it doesn't matter for you or for Bion or for fishery for that matter कि आप डिग्री देखें, would it be safe to say that? फॉर मोस्ट ऑफ द जॉब रोल्स, फॉर 90% ऑफ द जॉब रोल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टेक्नोलॉजी का कोई हार्डकोर बंदा है तो उसके लिए ऑब्वियसली यू नीड डिग्री, बट डिग्री से भी ज़्यादा उसके स्किल्स क्या हैं उस चीज़ में। तो बट नॉर्मली जो है वो आईटी का बंदा है, 90% ऑफ द केसेस में उसके पास आईटी डिग्री होती ही है। तो देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस के जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है वो अच्छा कोडर भी हो, बट अदर देन दैट फोकस फिर भी स्किल्स पे ही होता है रादर देन डिग्री। मतलब आई थिंक नॉट मोस्ट ऑफ यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि हमने आज तक किसी बंदे से डिग्री ना मांगी है ना उसको बोला है कि Likewise. कंपनी में जमा कराएं। सो इवन हायरिंग के बाद हम लोग पूछते भी वो नहीं है और एचआर देखते वाले भी के लिए नहीं रखते हैं है रिकॉर्डिंगली, डिग्री। बट एग्रीड अली के साथ वो कि आई मीन इंटरव्यू में प्रेफरेंस नहीं है। वो इसलिए भी रख लेते हैं अब हम कि भाई वो जो है वो भाग जाते हैं उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए बगैर, वहां जरूरत होती है, otherwise I don't think it is important. You're absolutely right, spot on. Thank you. This is what I wanted to hear through this panel. अच्छा, moving on to the next very pressing item, which I think from an e-commerce perspective आप सब लोगों के लिए बहुत important है और pain point भी है, is branding. How important is branding? So for example, like Badr was saying early on कि जी आप marketplace पे चले जाएं, आप social media पे चले जाएं, but at the end of the day you have to build your own brand, you have to have your own presence. राइट तो मैंने ये देखा है कि जो पाकिस्तानी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो ब्रांडिंग में वीक है कंपेयर टू द ग्लोब. इज दैट द केस? एंड इफ इट इज, हाउ आर वी trying to overcome that? This is open for everybody. I mean, please feel free to jump in. I want to give some good amount of chunk of time to this because our audience needs to understand कि कितना important है branding और हमें कितना time इस पे spend करना चाहिए. So whoever wants to take the first leap on this. Okay, start with Nadia because she just joined in. Okay, so I think maybe because dealing with so many, smaller sellers, like I think more than thousands of them, I feel at least specifically more in terms of women-owned small businesses, या फिर बहुत सारे smaller businesses, branding is something they just don't focus on. Branding से I mean even the logo is something that's just taken off the internet, जो शायद किसी और का logo है. And sometimes it's unfortunate that the watermarks are also there if they're taking something from Canva or they're taking something from one of the sites. They don't even that the watermark is there. So I think branding is very important in terms of not just the logo, the products, the product pictures. आपको आपके distributor ने तस्वीर भेजी है, don't just put it out like that. And I have always noticed whether it's on Sheops or even on Fempro, because we do have sellers are marketing the products on Fempro as well. People who have done their branding right, they have a good pose, have good pictures, actual pictures of the product, not something that they've taken if they're resellers or taken pictures of, let's say, a crafted item from the internet and then saying we can make the same. The ones who have their own pictures always get more orders. So it's very important to have true pictures of your product, having a unique good business name. I think these are general branding guidelines जो general businesses को apply करती है, वो e-commerce में भी करती है, but maybe in e-commerce more so because you are dealing with the online world. It's like एक shop का दुकान का नाम कुछ भी हो, people may go and buy, but online your audience is much bigger, so it matters. I mean, I am very very जिसको कहते हैं ना, this is very vocal about this branding element and being original in that. So Right. So does anybody want to add more to that? Because I remember the reason why I'm asking this, and then again, I'm not very directly associated with the e-commerce industry per se, but why I'm asking is, a few months ago, I read about Amazon not bringing on Pakistani consumers because our branding is weak. So I mean, I'm sure that Badr can shed some light on that, but I want to come to Badr right towards the end. I want Adil and Anam to talk about their branding and how they think they work towards improving it.
and then maybe we can have Badr wrap it up with about Amazon and all. Okay, sure. So I'll start with your previous question when you were saying, is it fair or justified to say that degree is not needed? It is not for us. Maybe हम नहीं लेते degree वाले बंदों को, हम हम skillful लोगों को लेते हैं, and fortunately or unfortunately हमारे पास अभी current resources में कोई भी IBA और LUMS graduate नहीं है. They are all mostly they are from TCF. Or TCF से पढ़कर they have learned some skills and they are working with us from the very bottom stage. They are now at the senior developer position or senior level. So yeah, this is what we look for. हमें सबसे important जो चीज देखनी होती है, it's their attitude towards work और वो कितनी ownership लेते हैं काम की. This is something which we actually look for, but it is for us, maybe for Price or maybe for Fishery, maybe for Nadia. But अगर आप aim कर रहे हैं to go for different companies, so yes, they do ask degrees, and they not only ask degrees from किसी भी university की, they do look for students graduated from certain universities. तो it depends कि आप क्या aim कर रहे हैं, आप किस organization पे जाना चाह रहे हैं. You have to work accordingly. Now towards the branding question, yes, branding is super important. और e-commerce में actually branding के ऊपर ही सारा आपका जो भी process चलता है वो चलता है, because e-commerce especially in Pakistan is a little immature और trust issues बहुत ज़्यादा हैं. तो word of mouth comes in between, जो कि आप आप किसी को influence कर सकते हैं to go and buy from certain brand और e-commerce store. तो word of mouth create ही brand से होता है, branding से होता है. अगर आपकी branding strong है तो I think वो word of mouth आपका naturally create होना शुरू हो जाता है. So don't just ignore कि आपने एक as Nadia said कि Canva पे आपने logo बना लिया है, आपने किसी से 2000 रुपए देके logo बनवा लिया. This is not it. You have to constantly work on your branding, especially if I talk about the sellers who are selling on our platform. They are mostly micro and small businesses. What they do, they get pictures on WhatsApp from the wholesaler and they just try to put up on the website as it is. So there comes the issue. क्योंकि कस्टमर को जब वेबसाइट लुक पे एक पिक्चर दिखनी है, वो आपकी व्हाट्सएप पिक्चर नहीं हो सकती डेफिनेटली. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, इवन इफ यू आर पोस्टिंग ऑन फेसबुक एज वेल. WhatsApp pictures are different thing, but if you are posting something on website or even on Facebook or Instagram, you have to be literate enough कि आप अपना जो भी प्लेटफॉर्म है उसके बारे में, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक की पिक्चर इंस्टाग्राम पे शायद नहीं जा सकती 100%. आई थिंक नादिया के कोर्सेज में ये बातें शायद आप लोग बेहतर सीख सकें, whoever is listening, कि फेसबुक के लिए आपको एक डिफरेंट ब्रांडिंग चाहिए, इंस्टाग्राम के लिए डिफरेंट ब्रांडिंग चाहिए और फिर वेबसाइट के लिए डिफरेंट ब्रांडिंग चाहिए. सो यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स. इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत कोई हैवी ड्यूटी कोर्सेज करें. एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट. ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं. फैम प्रो जैसे एक कोर्स करा रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा इंडोर्स कर रही हूँ नादिया आपको. तो but thank you, Adam. That is actually a course by Facebook. Yeah. She Means Business program that's specially for women sellers, and we do, other than covering Facebook, Instagram platforms, we do proper detailed modules on content creation or ye original pictures and how to get that part right, because वो बहुत key element as you're putting it. So thank you so much. Yeah, and learning these elements is very very important. Not just कि आप e-commerce setup कर लें website पे या even Facebook पे, but you have to learn all these elements before going into the core e-commerce business. Yeah. Right. So I want to take this quickly to Adil and ask him about his experience, so that we can have Badr wrap it up, because I have a couple of very key questions about cashless economy that I want to ask, and then there's a lot of questions from the audience, and we have to wrap up in the next 16 minutes. So I'll try to keep it very brief. बेसिकली जिस वक्त हम लोग ब्रांडिंग को देखते हैं एट प्राइसवे, तो हम लोग सिर्फ उसको लोगोज या इमेजेस तक नहीं देखते. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्योंकि बाकी नादिया
ने और अनम ने ऑलरेडी कवर कर लिया, तो मैं उसको टच नहीं करूंगा। हम लोग उससे आगे जो चीज़ें देखते हैं वो ये है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपकी, वो सारी चीज़ें ब्रांडिंग में हम लोग उसको डालते हैं। ब्रांडिंग में हम लोग इसलिए डालते हैं कि ब्रांडिंग से जब हम लोग समझते हैं कि ब्रांडिंग क्या है, तो ब्रांडिंग आपकी टॉप ऑफ द रिकॉल, माइंड रिकॉल होनी चाहिए आपके ब्रांड के बारे में, कि अगर किसी ने लेट्स से फोन लेना है तो उसने उसके जहन में फौरन नहीं आना चाहिए कि मैंने प्राइसवे से लेना है। अब वो प्राइसवे से क्यों लेगा फोन, इमेजेस और लोगोस के अलावा वो ये है कि उसने जिस वक्त फॉर एग्जाम्पल आपने उसको प्रोडक्ट डिलीवर किया है, तो आपने उसकी पैकेजिंग कैसे की है, तो पैकेजिंग भी ब्रांडिंग के अंदर आती है। आप जो है उसको एक अच्छे सा फ्लायर में डाल दें, आप उसके अंदर छोटा सा कोई हैंड रिटन नोट डाल दें, आप एक छोटा सा उस पर लोगो डाल दें। आपको कोई बहुत फैंसी चीज़ों की तरफ नहीं जाना, बहुत सस्ते से आप ये ब्रांडिंग कर सकते हैं। आप उसके अंदर छोटा सा, अगर कोई आपका मार्जिन इजाज़त देते हैं या आपकी प्राइसिंग इजाज़त देती है, तो आप अपना छोटी सी कोई गिफ्ट डाल दें उसके लिए, या आप कोई कूपन डाल दें कि कस्टमर अगली बार भी आपके पास आए और वो ये फील करे कि इस ब्रांड ने मेरी केयर की है, कि जो मैंने उसको मांगा था उससे मुझे अबव एंड ओवर भी मिला है, क्योंकि जो आपने उसको दिखाया था वो तो वो डिजर्व करता है, वो चीज़ तो उसको मिलनी थी। अगर आप उससे कम दे रहे हैं तो फिर आप ब्रांडिंग तो दूर की बात, फिर तो आपका बिजनेस जो मर्जी कर लें, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। जो आपने प्रॉमिस की है वो तो आपको देना ही देना है, बट टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड यू नीड टू डिलीवर अबव एंड ओवर दैट। तो उसके लिए आप जो भी चीज छोटी छोटी चीजें करें, बहुत महंगी चीजें ना करें। तो हम लोग बेसिकली इसको राइट। सो टू रैप दिस अप, बदर जो सवाल मेरा आपसे था एट द एंड ऑफ द डे कि सॉरी, आई एम सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई थी। आई थॉट यू फिनिश्ड। ओके, सो awesome. But that, so global marketplaces, without naming any, why do we lag there? What is the problem around branding that we lag there for our audience? थैंक यू। सो ब्रांडिंग जो है उसका एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। मार्केटिंग में एक फ्रेमवर्क, जनरल स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क जो हम सबको देखना चाहिए, उसको हम कहते हैं पोएम। पेड, ओन्ड, अर्नड, मीडिया। तो 3 तरह के हैं, पेड, ओन्ड, अर्नड। सो पेड वो जो आपने एड्स लगाए वो आपके पेड हो गए। अर्नड वो हुआ जो आपके बारे में पीआर की गई, किसी ने ट्वीट कर दिया, किसी ने फेसबुक पोस्ट लगा दी, दैट इज द अर्नड पार्ट। जो ओन्ड है दैट इज योर ओन्ड एसेट, यानी कि आपकी अपनी वेबसाइट इज योर ओन्ड एसेट। जो आपके सोशल पेजेस हैं वो आपके अर्नड हैं, बिकॉज यू डू नॉट ओन द टर्म्स एंड कंडीशंस, यू डू नॉट ओन द डोमेन, एंड टू एन एक्सटेंट वो थोड़ा सा ओवरलैप भी है। मगर इन पोएम में आपने जो सारा एफर्ट है वो ये है कि आपने ओन्ड को बिल्ड करना है विद पेड एंड अर्नड। So just to give you the kind of a fundamental कि ब्रांडिंग में आप कैसे करना चाहिए जनरली स्पीकिंग। और इसमें 2 तरह की मार्केटिंग होती है, एक होती है ब्रांडिंग, एक होती है परफॉर्मेंस। ब्रांडिंग पे मैं आता हूँ। परफॉर्मेंस ये है कि मैंने ऐसे एड्स लगाए, ऐसी कम्युनिकेशन की कि सेल लग गई है, अभी ले लें, बाय नाउ, या इस तरह की बातें कि 10% डिस्काउंट है वगैरह वगैरह, ऐड टू कार्ट, शॉप नाउ, वर्सेस ब्रांडिंग जहां मैं अपने ब्रांड की इक्विटी बिल्ड करता हूँ। तो अगर आप खाली परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते रहेंगे और ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो एक स्टेज पे जाके आप प्लेटो कर देंगे, आपकी सेल्स रुक जाएंगी, उससे आगे नहीं जाएंगी, बिकॉज ब्रांड की इक्विटी नहीं बिल्ड हुई होगी, लोगों को ब्रांड का पर्सोना नहीं पता होगा, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ब्रांड की इक्विटी बिल्ड होनी जरूरी है। तो ये ना सिर्फ जरूरी है हमारे पाकिस्तानी स्टोर्स या ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए, बल्कि ये कंट्री लेवल पे भी जरूरी होती है। इसलिए गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट वगैरह, जिनका काम है कि कंट्री की ब्रांडिंग ग्लोबली की जाए। बहुत सारे ममालिक अपनी ब्रांडिंग करते हैं, ट्रूली एशिया, मलेशिया वगैरह वगैरह, कंट्री ब्रांडिंग की जाती है, जिससे फिर वहां इंटरेस्ट डेवलप होता है टूरिज्म का भी और बिजनेस का भी, अदरवाइज भी। तो पाकिस्तानी बिजनेसेस का चैलेंज ये है कि हमारे जो मेजॉरिटी बिजनेसेस हैं वो B2B काम करते रहे हैं। जितनी हमारी ट्रेड है वो मेजॉरिटी B2B रही है। तो B2B वाले जो हैं वो कंटेनर लोड्स बाहर बेचते हैं या लोकली भी, तो उनको आदत नहीं है एक एक चीज को बेचने की या उसको ब्रांड करके बेचने की। वो कंटेनर होते हैं जनरली व्हाइट लेबल, किसी और के लिए बनाए होते हैं, उन्होंने अपने नाम से नहीं बेचते हैं। तो चाहे वो चावल यहाँ से बाहर भेजें, वो अगला अपने नाम के बना के रीपैक करके उसको बेचता है। अगर हम ऐसे जूते भी बनाते हैं, कपड़े भी बनाते हैं, जो भी हम यहाँ से बनाते हैं, वो पाकिस्तानी ब्रांड्स नहीं होते, वो कोई थर्ड पार्टी ब्रांड्स हैं जिनके लिए हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। तो उनका माइंडसेट नहीं है कि वो एक ब्रांड को लेके चलें, क्योंकि ब्रांड में खाली अपनी चीज बेचनी नहीं है, आपने जिस तरह अभी अदील ने बात की, आपने कस्टमर एक्सपीरियंस को भी देखना है, यूजर एक्सपीरियंस को भी देखना है, तो यूजर जर्नी भी देखना है कि जब वो चीज बिकेगी, वापस भी आएगी, रिटर्न भी होते हैं, कैंसिलेशन भी होते हैं, वो कैसे मैनेज होंगे, एक एक यूनिट कैसे बेचा जाएगा, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, लोकल मार्केट की सेंसिटाइजेशन क्या है। कुछ चीजें फॉर एग्जांपल अगर आपने गर्मियों के कपड़े सर्दियों में नहीं बेचने हैं, ऑफ कोर्स, तो आई जस्ट गिविंग यू एन एक्सट्रीम एग्जांपल, तो आपको वो भी देखना है। कुछ चीजें हर मार्केट में नहीं बिकती हैं,
तो ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। तो जो कुछ इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस हैं उन्होंने ये नोटिस किया कि जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, जैसे भी नादिया ने और अनम ने पहले हाईलाइट किया, वो कॉपी पेस्ट कंटेंट पे हम बहुत ज्यादा चलते हैं, हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट नहीं करते, हम ओरिजिनल आइडिया नहीं क्रिएट करते। और ब्रांड का एक सिंपल लफ्ज बता दूं, ब्रांडिंग का मतलब ये है, ब्रांड इज अ प्रॉमिस। प्रॉमिस पे आपको खेलना है, एंड ब्रांड हैज टू हैव अ स्टोरी। खाली नाम नहीं होता, ब्रांड इज नॉट जस्ट एन आइडेंटिटी, इट इज अ स्टोरी एंड इट इज अ प्रॉमिस। तो वो जो आपका स्टोरी और प्रॉमिस है वो ओरिजिनल होना जरूरी है, कि वो स्टोरी क्या है, प्रॉमिस क्या है, व्हाट आर यू डिलीवरिंग, एंड दैट नीड्स टू बी वेरी लेजर शार्प फोकस्ड, बुल्स आई। तो मैं इंटरेस्ट ऑफ टाइम में ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, बट तो ये कंट्री लेवल पे भी जरूरी है पाकिस्तान के लिए, हमें मुल्क को भी हमारे करना है, हुकूमत को भी ध्यान रखना है, और हमारे बिजनेसेस को भी अपने आप को इम्प्रूव करना है। इस पे हम लोकल बिजनेसेस इन चीजों में अच्छे नहीं है, ब्रांड को बिल्ड करने में और कंटिन्यू ग्रोथ करने में। Right. Wonderful. I think that wraps it up for branding. I wanted to keep the last 10 minutes for questions, but I think मैं 5 मिनट में थोड़ा सा कंजूस होकर 5 मिनट रखूंगी ऑडियंस सवालात के लिए। एक सवाल जो मैं चाहती थी कि मैं जरूर यहाँ पूछूं आप लोगों से, बिकॉज आई थिंक इट्स अ पेन पॉइंट फॉर लॉट ऑफ ई-कॉमर्स बिजनेसेस। इसके हम जब पेमेंट्स की बात करते हैं तो हमारा उसका इकोसिस्टम इतना पुअर है कि लोग कैश ऑन डिलीवरी पे ही जा सकते हैं, एंड देन आपको पता है उसमें फ्रॉड्स भी होते हैं, उसमें जो है वो ऑर्डर्स भी कैंसिल होते हैं। बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, ड्यू टू ऑब्वियसली एनईसीसी, एंड आई वांटेड टू एक्चुअली टॉक अबाउट एनईसीसी इन डिटेल कि जी कौन से पिलर्स हैं, पर अभी टाइम नहीं है। तो वो जो अभी गवर्नमेंट ने जो एक्शंस लिए हैं, अगर आप उसको ब्रीफली 3 या 4 मिनट में रैप अप कर सके, स्पेशली अबाउट द कैशलेस इंसेंटिव जो है वो फेडरल भी दे रहा है आपको, केपी में भी आ रहा है, तो थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में बता सके हमारे ऑडियंस को कि हाउ एंड व्हाई, सो व्हाट इज द रोड मैप ऑन दैट इन शॉर्ट। ये मेरे से सवाल है? मेरा ख्याल है कि हु इज द बेस्ट पर्सन इन दिस शो फॉर टू आंसर। नहीं, मैंने कहा सॉरी, जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, सॉरी। गवर्नमेंट के साथ तो बहुत अच्छा नहीं, सॉरी, मैं क्विकली थोड़ा सा इस पे बताता हूँ आपको। सो अभी तक पाकिस्तान में जिसको हम कहते हैं बैंक इकोनॉमी, वो सिर्फ 20% है, यानी पूरे पॉपुलेशन की सिर्फ 20%, 20% लोगों के पास बैंक अकाउंट है। इसमें सारे मोबाइल वॉलेट्स और कन्वेंशनल बैंक वगैरह अमूमन सारे इंक्लूड है। ओवरऑल पॉपुलेशन का तकरीबन 14%, 13, 14, 15% ऐसे हैं जिनके पास डेबिट कार्ड है, और पूरी पॉपुलेशन का 1% ऐसे हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, सिर्फ 1%। तो प्लास्टिक मनी बेस्ड ऑनलाइन बैंकिंग अगर आप ऑन कर भी लेते हैं, अवेलेबल भी कर देते हैं, तो वो सिर्फ 1% है पॉपुलेशन का, हमारी पूरी आबादी का, इसलिए वो ज्यादा नहीं, आप उसमें ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते। तो मैं इस वक्त उस चीज पे नहीं जा रहा कि क्यों लोग बैंक नहीं है और क्यों लोग वहां नहीं आ रहे। दूसरी बात, इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ चीजें, स्टेट बैंक ने अच्छी करनी शुरू कर दी। उन्होंने एक तो हमें समझने की जरूरत है, प्लास्टिक मनी कम लोगों के पास है, और वो फिर उनके पास वो कॉल सेंटर वाला सिस्टम है कि आपको पहले कॉल करके ओपन करवाना पड़ता है कार्ड और फिर वो अप्लाई होता है। तो अब कुछ नए पेमेंट सिस्टम्स आ रहे हैं। एक है अकाउंट बेस्ड पेमेंट सिस्टम, कि अगर आपका सिर्फ बैंक अकाउंट भी है तो कम से कम आप ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर सकें। तो हमारे लोकल पेमेंट गेटवेज कुछ आ गए हैं, जिस तरह निफ्टी पे और इस तरह के हैं, जहां से आप और एप्स है, पे प्रो है बाय एप्स, और ये तो आप पे फास्ट है, इनके थ्रू आप लोकल अकाउंट बेस्ड ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी अकाउंट टू अकाउंट, और विद इन द वेबसाइट। आपको अलग जाके किसी को ट्रांजैक्शन नहीं करनी और फिर रसीदों की कॉपी नहीं भेजनी, विद इन द वेबसाइट आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन। और तीसरी जो अकाउंट टाइप है जो जिससे आप ट्रांजैक्शन करते हैं, मोबाइल वॉलेट्स, जिसमें कि हमारे इजी पैसा, जायज कैश और ये लोग आ गए, कि आप अब अकाउंट मोबाइल वॉलेट बेस्ड भी ट्रांजैक्शन करते हैं, और ये भी अब इंटीग्रेटेड हैं अब आपके सिस्टम के साथ। तो ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, परफेक्ट नहीं है, इनमें चैलेंजेस हैं। और बाय द वे, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे फ्रॉम जॉब अपॉर्चुनिटी परस्पेक्टिव और स्टेम के एंगल से आप बात करें, तो यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है कि एक मिडिल लेयर क्रिएट की जाए, बहुत ज्यादा। जो बैंक्स हैं और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं, इन सबके पास इतनी बैंडविड्थ नहीं है कि वो बहुत सारे छोटे मर्चेंट्स को सर्विस कर सकें। सो एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में एक जो ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स है स्टेट बैंक के, वो तकरीबन 1500 के करीब ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने स्टेट बैंक अप्रूव्ड पेमेंट गेटवे पाकिस्तानी यूज किया हुआ अपनी वेबसाइट के अंदर। इसके अलावा जो थर्ड पार्टी अंदाजे के मुताबिक 10 से 15 हजार ऐसी वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान में जिनमें ई कॉमर्स से किसी तरह से इनेबल हुआ। तो इसका मतलब है कम से कम 8-9 यानी 10x ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर पेमेंट गेटवे नहीं है कोई। तो बहुत सारी हमारी टेक्नोलॉजी के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो इनको इंटीग्रेट कर सकें, इनको कनेक्ट कर सकें। तो एपीआईज को समझना बहुत जरूरी है, खाली डेवलपमेंट करना जरूरी नहीं है, आपको कनेक्टिविटी भी आनी चाहिए करनी।
बट पेमेंट्स का इस वक्त यहाँ है, कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ये है कि अगर आप डिजिटल पेमेंट सिस्टम को यूज करेंगे, प्लास्टिक मनी यूज करेंगे, अभी मोबाइल वॉलेट्स पे नहीं है, प्लास्टिक मनी अगर आप यूज करेंगे, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, तो आपको जीएसटी 16% के बजाय 5% लगेगा, और ये अभी सिर्फ रेस्टोरेंट्स और सैलून्स के अंदर है। मगर इससे पंजाब गवर्नमेंट ने ये रिपोर्ट ये की है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने, कि उनको तकरीबन 30 से 35% ग्रोथ आई है डिजिटल पेमेंट्स में। अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं, उन्होंने ये एक वेबिनार में शेयर किया था। तो इसी तरह फिर केपीआरए भी इसको करना चाह रहे हैं, और सिंध गवर्नमेंट ने भी यही कहा कि हम इस इनिशिएटिव को टेस्ट कर रहे हैं और हम इसको स्केल अप करेंगे। तो माइंडसेट चेंज की जब बात हम करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी में भी आने की जरूरत है, हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आने की जरूरत है, तो वहां भी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। और इसका फायदा ये है कि हमारी जो डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी है वो भी होनी शुरू हो रही है। जब लोग ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट्स करेंगे तो डिजिटलाइजेशन भी होगी। तो मगर अच्छी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। स्टेट बैंक इज वेरी प्रोग्रेसिव, उन्होंने बहुत अच्छे कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। जिस तरह फ्रीलांसर्स के लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव ये लिया कि जो आपकी इनबाउंड रेमिटेंस की लिमिट है वो $25,000 कर दी गई है एट द मिनिमम केवाईसी लेवल। तो आई थिंक पेमेंट्स की तरफ अभी बहुत काम करने वाला है और बहुत इनिशिएटिव्स हैं। मगर एपीएस को मैं रिकमेंड करूंगा, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग कम्युनिटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनना चाह रहे हैं, बन रहे हैं, वो एपीएस की तरफ भी बहुत फोकस करें। इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। Right. Bilkul. Yeah, that's exactly where I wanted to take this, both for our engineers as well as for our young budding entrepreneurs. कि कहाँ जा रही है हमारी industry in terms of payments. Now there are a couple of questions from the audience that we need to answer, and there's one very generic question which I think Adil, Anam, and Nadia तीनों के लिए it sits in very well. That owing to great competition and variety of almost every item available online, what items still have potential to make place in the market? And I think जो इनका सवाल है वो more towards the global market है. I'm hoping कि जी global market में पाकिस्तान से क्या चीजें ऐसी हैं जो हम निकाल सकते हैं, then towards the local market. So if any of you would like to answer that. For definitely there is a huge opportunity for export of local items, such as all the handmade beautiful things that we have, crafts, your clothes, your shoes, khusas, because every time we've had a number of interactions with international visitors taking the products abroad or them coming here, it's always so greatly appreciated. So agar hum global perspective se baat karen, then definitely all these handmade items, from fashion, shoes, to unique crafts, to these mobile आपके laptop covers etc, जो artistically uniquely designed है, not the standard printed ones. और local में जो है वो तो I think grey market से आ रहा है. There's a lot of demand for imported cosmetics and all. I don't know if the government could do something to legalize that or have a proper channel. The demand is crazy for the imported. Do you want to add to that? इंटरनेशनल मार्केट का तो मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, बट लोकल मार्केट में जैसे बदर भाई ने वेबिनार के स्टार्ट में बताया था कि अभी ऑनलाइन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का 1% हुआ है रिटेल का, विच इज़ मीन कि 99% अभी भी ऑफलाइन जा रहा है। तो इस वक्त डिबेट ये नहीं है कि आप क्या चीज़ ऑनलाइन बेच सकते हैं या कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 99% मार्केट को अभी आपने टैप ही नहीं किया। तो आप जो भी चीज़ बेचेंगे अच्छे तरीके से बेचें, मेहनत से बेचें, वो जरूर बिकेगी और बहुत अप्रिशिएट की जाएगी। Right. I think that's it. That's an absolutely wrapping up answer. एक सवाल और आया है जो I think I sort of like didn't get it, but I'll share it with you guys and see if you have any answers for that. It's seen that for budding entrepreneurs, collaborations are what matters, and we all know that obviously the most, but some solo startups don't have access to such platforms or partners. How should they go about doing this? I'm not sure if this question is with regard to investment or looking partners like for like sleeping partners or investment partners, but if any of you would like to take this up and answer it for our audience. I think the question sounds like the Raz Kareem collaboration or the Raz or Baikia collaboration, if the question is regarding this way. तो अगर आप सोलो स्टार्टअप सोलो फाउंडर हैं तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू डिफरेंट ब्रांड्स. देयर इज नो हार्म कि आप नहीं जाएं या किसी से बात नहीं करें, नो मैटर एट व्हाट स्टेज यू आर. ठीक है, आप डायरेक्ट कोई हाई जंप नहीं कर सकते, बट लुक अराउंड योरसेल्फ. आपके स्टार्टअप से रिलेटेड कौन सी ऐसी कॉम्प्लीमेंटिंग प्रोडक्ट है विच कैन बेनिफिट योर कस्टमर एंड योर कोलैबोरेट पार्टनर कस्टमर्स. तो अगर दोनों के कस्टमर एक हैं या दोनों के कस्टमर को उन दोनों से कोई फायदा हो सकता है, ऑलवेज रीच आउट टू ब्रांड्स.
make collaborations. Don't think कि आप अगर बहुत छोटे startup हैं या solo startup या solo founder हैं तो आप नहीं कर सकते. You can, but the main point is to reach out. Can I just add one thing to that? For those that are into tech startups, or though there are more startups focused on innovation, they can reach out to incubators like the Nest IO and NIC Karachi, and isi tarah, in different cities, because that's where they will find other startups who are willing to collaborate, because together they can make a larger reach, like startup A collaborating with startup B. And if they are smaller businesses, like chote se, like fashion related, ya chote small businesses or micro businesses, then Facebook groups is a great way to post, because we see women all the time posting on Fempro for collaborations, and we've seen a jewelry seller, a kapde ka seller, and a jute ka seller come together, get a great photo shoot done, combine the resources, and everybody benefits, and they all cross post and they all get a good reach. So Facebook groups for very smaller ones, for better for other ones, there are these accelerators and incubators, and that's where you'll find a good pool, and more startups are willing to collaborate with each other. So. Right, wonderful. Thank you so much. I think that wraps up our, and we are almost on time. If any of you would like to add a closing remark, please go ahead. We can start with Adil, Badr, then Anam, then Nadia. इट्स वेरी सिंपल कि चीज़ें बेचें, बहुत अपॉर्चुनिटी है, मोहब्बत से बेचें और लोगों का ख्याल रखें, लोगों को एज अ कंज्यूमर सोचें कि जी ये पार्सल आपको अगर दे रहे होते तो आपको इस जिस तरह आप दे रहे हैं उसी तरह मिले तो आपके क्या रिव्यूज होंगे और आप दोबारा खरीदेंगे उनसे या नहीं खरीदेंगे, तो आपके काफ़ी सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे. थैंक यू. मेरा जी एक ही रिकमेंडेशन होगी, फोकस 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 एंड जस्ट कीप ट्राइंग. एक्चुअली इसमें एक्सपेरिमेंटेशन बहुत चाहिए, बिकॉज ये चीजें पहले नहीं हुई हैं. सो द बेस्ट वे टू लर्न इज टू एक्सपेरिमेंट. सो एंड इट इज गुड के. और एक मेरी रिकमेंडेशन होगी कि हमारी जो यंग बडिंग स्टूडेंट्स हैं, इनको चाहिए कि जो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनके साथ पार्टनर करें. उनको टेक्नोलॉजी नहीं आती, इनको बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है. द बेस्ट थिंग इज टू मैच मेक. तो अगर आपको टेक्नोलॉजी आती है तो आप किसी ऐसे जानने वाले के साथ जो छोटा बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ मैच मेक करें, और ई कॉमर्स, आई थिंक दैट्स वेयर द मैजिक विल हैपन. So yeah, I'll take up Badr's point. Focus on one thing at a time. Majorly, अभी जो मेरे mind में 3 basic areas आ रहे हैं. If you want to come into the e-commerce industry, एक तो आप कोई चीज बेचना शुरू कर दें, ठीक है. अगर करना है तो फोकस करें एक नीश के ऊपर और उसको बेचना शुरू करें. दूसरा जो एरिया है where you can actually join any existing e-commerce business और उनके लिए काम करें, फिर वहाँ पे different areas हैं, development और SEO और designing और something, customer services एक और उसके अंदर है. थर्ड जो चीज़ है जो कि I would highly recommend to all the engineering और business students और technology students even कि ई-कॉमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए प्लेटफॉर्म्स और सॉल्यूशंस क्रिएट करें. बिकॉज ई-कॉमर्स ठीक है अभी हमारा है, बहुत सारा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है. उसको मैच्योर करने के लिए वी डेफिनेटली नीड सपोर्टिंग सॉल्यूशंस. फॉर एग्जांपल रज़ा मतीन का ब्रांड वर्स है, आदम दाऊद इज वर्किंग ऑन another project. I am forgetting the name. Anyway, so something which can actually be secure. So something which can actually facilitate e-commerce businesses is something. अगर आप startup की तरफ देख रहे हैं e-commerce के, so instead of creating an online shopping marketplace like Daraz or Buy On or Pricer, try to facilitate us with your startup or with your idea. So yeah. Nadia, last word. I mean, I would just say everybody's covered all the points. Just one thing: be innovative, be unique. Don't try and just do Me Too products the way Anam said. Try and be innovative, try and be creative, and be original. There's just something to add to what all of them have said. Right, and wonderful. Let me just close this off. I think all our panelists, thank you so much for all your time, and you have given some amazing feedback and advice to our youth. आप लोगों ने अभी जो closing remarks दिए हैं वो ज़्यादातर entrepreneurs और startups के लिए हैं. So I just want to close this with, obviously we have a lot of job seekers as well on this platform. So wrap up what we discussed about that is that degrees matter, but skills matter more. Work ethics matter more than that. And if you're engineers and looking to do to find your spot in the upcoming and the growing e-commerce industry, then focus on building APIs and be more creative and be more giving at the end of the day.
Yeah, with that, we'd like to wrap this up. Thank you so much, guys, for doing this, on a Friday afternoon. Yeah, thank you so much. Love is to all of बहुत you. शुक्रिया